صرف قرآن پڑھنے والوں، نہ سمجھنے والوں، نہ عمل کرنے والوں. تورات بھی اللہ کی کتاب تھی. اللہ فرمایا یہ یہودی یہ تورات اٹھائے ہوئے، ایسے اٹھائے ہوئے جیسے گدھا بوجھ اٹھائے ہوئے. قرآن ہے مثل الذین حملوا التوراۃ، تورات اٹھائے ہوئے ثم لم يحملوها، لیکن اس کی حکم برداری نہیں کرتے. کیا میں عربی کا عالم ہی نہیں ہوں کہ حملوا بھی ہے. تورات اٹھائے ہوئے لیکن اس کا حکم اٹھائے ہوئے نہیں ہے. اٹھائے ہوئے اور نہیں اٹھائے ہوئے. قرآن پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، نہیں مانتے، بات نہیں مانتے. اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، لیکن مان نہیں رہے. گدھے کے اوپر بوجھ بے سمجھ کا سمجھا اللہ کیا ہی بڑی مثال ہوگی جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو راہ نہیں دیتا. توریت پڑھتے تھے، آج نہیں پڑھتے. آج کے یہودی تحریر شدہ بیت المقدس میں جا کے دیوانی دریا پہ روتے نہیں ہیں، روتے ہیں. لیکن کافر ہو چکے ہیں، مشرک ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں اور بڑے پکے ہیں دشمنی میں. تم نے تو ہندوستان کے حصے سے ہندوستان کے علاقے میں ہجرت کی، یو پی سے آ گئے اور بہار سے آ گئے اور انڈیا سب کانٹیننٹ ایک تھا. اسلام کے نام پر اس کمرے سے نکل کے اس کمرے میں آ گئے اور آ کے یہاں جو فساد پھیلا مار کاٹ یہ وہ. اور اسرائیلی دنیا بھر سے آئے وہاں، دنیا سے اپنے مکان چھوڑ کر آئے، بیت المقدس کے قریب آبادی بنائی، ان کو آباد کیا گیا. تم سے 1 سال بعد تم 47 میں آزاد ہوئے، اسرائیل 48 سے بنا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آج دنیا میں ان کی حکومت اندرونی، امریکہ میں انہی کا حکم چل رہا ہے. انڈیا ان سے اسلحہ دے رہا ہے. عرب مسلمان کیا کاٹ دینا یار، عرب مسلمان ڈر کے ان سے صلح کر رہے ہیں. صلح کرنے والا یہ اصل میں اقوام متحدہ میں ہمارے خلاف ووٹ دے دیتے ہیں نا، تو ہماری بات رہ جاتی ہے. ویٹو کر دیتے امریکہ. بے غیرت بولنا نہیں چاہتا لیکن میرے منہ سے بار بار نکلتا ہے. اس کمرے سے اس کمرے میں آئے اور اس جگہ کو تہس نہس کر دیا، گندا کر دیا. کولر کی لاٹھی کھلی ہوا فضا، پنکھے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. گٹر باغیچہ بنا دیا. دہلی سے لاہور آ گئے. اس پنجاب آپ نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت جانے دی ہیں بچیوں نے. اللہ اکبر. ایک بچی آگے مولوی صاحب کو دم کرانے، مولوی صاحب کا کیا نام ہے؟ نام بتایا، سکھ تھا. تو تم مسجد میں کیسے آئی؟ نکلو باہر. کہا مولوی صاحب ناراض نہیں ہوئیے گا، میں تھی تو مسلمان، ہجرت کے وقت پکڑی گئی، اس لیے بچہ سکھ ہے. پاکستان کی
एक ही चीज रह जाती है फिर इनसे कहो कि ये मरने की तमन्ना करें। ये अल्लाह वाले हैं ना, अल्लाह के दोस्त हैं, तो मौत की तमन्ना करें। खुदा की तमन्ना और में मक़द्दर कई ये हरगिज़ मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि तो मालूम है जो कुछ अमल कर चुके हैं, जो कुछ आगे भेज चुके हैं। यही आज आप अपने बिस्तर पर सोते वक्त सोचिएगा कि क्या मैं मौत के लिए तैयार हूँ। देखिएगा कितनी बात याद आएगी कि दुनिया की अधूरी छोड़ी हुई और अपने अमाल बार बार जिक्र कर चुका हूँ, आपके यहाँ जरूर करता हूँ। मैं नौजवानी में शायद जिंदगी कोई जोर बात नहीं का दावा नहीं है, मगर एक हफ्ते में बैठा था, बुजुर्ग ने कहा अपनी तो रुमाल सबके सामने रख दिए, सफ़ेद रुमाल रख दिए, अपने गया कहीं रुमाल सर पर डाल लो, सबने रुमाल सर पर डाल लिए, लाइट बंद कर दी, अंधेरा हो गया। तो उन्होंने कहा एक लम्हे के लिए समझो कि तुम अपनी कब्र में हो और ये रुमाल जो है कफन है तुम्हारा, फरिश्ते आने वाले हैं और अब सोचो तुम क्या करके आए। पूरी जिंदगी तो छोड़ो, एक कोई बात ऐसी जल्दी से याद करो कि तुम उसे पेश करोगे तो तुम समझते हो कि इस नेकी की वजह से मैं बख्शा जाऊंगा। रुमाल पड़ा हुआ था, मैंने पीछे पलट के देखा तो मुझे तो कोई ऐसी नेकी नजर नहीं आई जिसमें मैं ये कहता कि ये मैंने ऐसी नेकी की है जिसकी वजह से बख्शा जाऊंगा। अच्छा था भी नौजवान और मैंने आँख भी खोली, ज़्यादा डर लग रहा था अंधेरे में कपड़ों से क्या, तो मैंने आँख खोली तो और ज़्यादा लगा क्योंकि सभी सफ़ेद कपड़ों में थे, तो ऐसा लगा क्या करें। बड़ा दिल घबराया, बहुत याद नहीं किया, मगर बचपन की शरारत है, कितनी नमाज़ें छुट्टी होंगी, कितनी नाफरमानियाँ की होंगी। मस्जिद में भी गए तो वो बचपन में तो माँ बाप कितने बच्चे मस्जिद में चटाइयाँ बिछाते सफाइयाँ करते, जहाँ बड़े हुए मस्जिद में लड़ते हैं, मारते हैं, गोलियाँ मारते हैं, खींच के बाहर ले जाते हैं, दरवाजे बुलाते हैं। बहुत बुरा अंजाम होगा। उसकी गैरत से बड़ी किसी की गैरत नहीं है। तो इसलिए मसला भी सुन लीजिए कि जिस मस्जिद में अज़ान हो जाए वहाँ से नमाज पढ़ के निकलिएगा, वरना अल्लाह दिलों को फेर देता है, मुनाफिक की निशानी है। हाँ, अगर कोई ज़रूरी काम हो, आपको ही नहीं मस्जिद में नमाज पढ़ानी है, आपको अज़ान तक कुछ तो जा सकता है, अज़ान होने के बाद नमाज पढ़ के जाएंगे और हर इमाम के पीछे नमाज हो जाएगी, फासिक व फाजिर के पीछे हो जाएगी, गुनहगार के पीछे हो जाएगी, बद मजहब के पीछे नहीं होगी, बद अकीदा के पीछे नहीं होगी। अकीदा मुश्तरक होना जरूरी है, और वो भी नहीं कि हम सुन्नियों में एक दूसरे को काफिर और मुशरिक और ये भी अगर मुझसे गलती हो जाए तरीका ये आप मुझसे कहिए कि तो भाई आपने ऐसा कहा था, क्यों कहा था, शायद मेरा अकीदा मुझसे पूछिए ना। और यही है कि मैंने अगर कोई तदबीर इख्तियार की है कि दूसरे भी मेरी बात सुन लें, जैसे पिछला दिन टीवी पे पक्का पड़ोसी था और बड़ा आलिम और पता नहीं कैसा होता था, पहली दफा मैंने नहीं कहा मैं आलिम नहीं, मैंने कहा क्यों बोल चुप, अल्लाह ने मुझे गालिब किया, आप हमारे बुजुर्ग हैं, वो आयत में पहले आए थे
आसिम इमाम ही कहने अय्युम अहदिम, क़यामत में अल्लाह ताला लोगों को इमाम के नाम से पुकारे। मैंने गलत से इमाम ही है वो महातिम भी है। अल्लाह ताला क़यामत में जो जिसकी पैरवी करता है उसके साथ बुलाएगा। कहते बाद मुफस्सिरीन उस तरफ भी गए हैं, तो वो फिर मैंने कहा वो गए हैं जो तब्दील से बचाना चाहते हैं, इमामत से बचाना चाहते हैं। हदीस शरीफ में मैंने हदीस है कि लोगों को माओ के नाम के साथ पुकारा जाएगा, ये अलहदा हदीस है, ये कुरान की आयत है कि जो तुम जिसकी पैरवी करोगे उनके साथ पुकारा जाएगा। अल्लाह अकबर। तो बाबू फोन आते हैं, आप वहाँ क्यों बैठे थे, वो फलां की देता था, आप वहाँ क्यों गए थे, एक सुनिए उसको भी खींच दो यार। तो जरा ख्याल करना चाहिए। दावा इस्लामी का मैं हामी हूँ, दावा इस्लामी बनने से पहले का हामी हूँ। ये हजरत ने खुद फरमाया, मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है। तब मौलाना सादी साहब ने उनको कहा है, उन्होंने तो अच्छे अल्फाज थे कि ये उस वक्त से हमारे हामी हैं जब दावा इस्लामी बनी भी नहीं थी, और जब बनी थी लोगों तो हमने जितना फेस किया है लगातार। तो मक्के में काबे में बैठे हुए लोग हमसे कहते थे कि कौन है, सुनिए क्या हो गया, का रद्द नहीं करते। मैंने कहा रद्द, जो खड़ा होके ये कह रहा हो अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, तो रद्द तो हो रहा है। ये रजा के नेज़े की बात है जो उर्दू के सीने के पार है। जो लड़के ये शाद पढ़ रहे हो तो आप क्या उससे उम्मीद करते हैं कि वो उसका नाम देकर ही ऐसे इस दौर में हम तो शाह साहब से करीब हैं, लेकिन अवाम सुन्नियत को मुज्तमा रखने के लिए कहता हूँ कि बड़ों की बातें मान रखिए। और एक उसूल ये ज़रूर है कि अगर किसी से कोई लगता है कि उन्होंने ज़्यादा कमज़ोरी दिखा दी मसले की, तो उनसे डायरेक्ट बात करनी चाहिए। वो अपनी तवज्जो पेश करें या माजरत चाहें, जो कुछ हो अवाम में चाहिए। अच्छा साहब, मैंने जब आंखें बंद की खोली भी तो और डर लगा, वाकई जब मैं मर गया और कफन एक दिन तो होगा, वो इज्जत के साथ पड़ी। तो फरिश्ते की तरह ही कहे सवाल जवाब बस होंगे, क्या लेके आए, क्या लेके, तो पसीने आ गए समझिए। इतने में बुजुर्ग की आवाज गूंजी, आंखें खोल दो, लाइट जला दो, मुबारक हो तुम अभी मरे नहीं हो, जिंदा हो, काम शुरू कर दो। अच्छे काम शुरू, नमाज शुरू कर दो। आज अपनी माँ के पेट से पैदा हो, ऐसे होके जाओ, तौबा कर लो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कहीं मरीज हो जाओ, अपने बच्चों को मरीज कर लो, कर दो कहीं, कर दो या ये तो इन लोगों को कोई महफिल से जाते हैं यार, ये देखेंगे तो नहीं, वो खुशबू तो पहुंचेगी ना, मिठाई के गले में डाल यही नाबिना जिन्होंने भी नारा लगाया। खुली आंखों से देखना और है, बंद आंखों से देखना और है, दूसरी हिस्स बहुत बढ़ जाती है। और अल्लाह ताला हुजूर का दीदार इनको नसीब फरमाए। तो जब ये आवाज आ गई कि मुबारक हो भी वाले नहीं हो, जिंदा हो, अमल शुरू कर दो, आप ईमान है कसम उस वक्त की जब जिंदगी का रंग बदल, मैं कहा भाई ठीक हो जाओ। और आज भी यहाँ जिस गति चाहे अपने आप को चेंज करें,
बच्चों को मुरीद करा दीजिए। देखिए ज़माना बहुत खराब आ गया है, आप समझ भी गए होंगे तो बच्चे जब बड़े होंगे पता नहीं किस माहौल में होंगे। मैं भी स्कूल में, खराबी तो बचपन से होती है ना, तकरीरें ये वो, बद में अदब सदर फलां फलां। हमारे मैं तो बहुत गरीब था, मैं तो जा भी नहीं सकता था। दूसरे स्कूलों में जो मुकाबला होता था तो हेड मास्टर साहब कैसे देते थे किराया, 10 रुपये फीस थी, तो वो अदबी सरगर्मी की वजह से आधी हो गई थी। या गुर्बत की 5 रुपये फीस थी, वो 5 रुपये भी महीने में देना एक मुश्किल होता था। लेकिन जब कॉलेज लाइफ में आए मैजिक तो लाइब्रेरी, और तो जो पहली दफ़ा लाइब्रेरी की किताबें दी उन लोगों ने दी जिनका ताल्लुक खास जमात से इस्लाम के नाम पर है। शुक्रिया अदा किया। एक दो मीटिंग्स भी हुई है, मैं सदर भी हुआ, मेरे पास सेक्रेटरी। बचपन में मरीज हो गया था ना, तो मुझे अपना शिकरा ये याद रहता था कि मेरे अब्बा मेरे पीर साहब मुझे पढ़ा करते थे, ये लोग नहीं पढ़ते, ये लोग कुछ लायक भी नहीं है। या रसूलुल्लाह रुहाना या अल्लाह हमारा इन्होंने भी पहले मैंने कहा भाई कुछ फर्क है ये, या रसूलुल्लाह। तो अल्लाह ने मुझे बचा लिया, क्योंकि बचपन में या रसूलुल्लाह के नारे सुने थे, रसूलुल्लाह दुरुशी सुनाता इसलिए। और हमारे आम तालिबानों से लेके बड़े बड़े जनरल तक, इस्लाम और दीन से मोहब्बत करने वाले तक, इसलिए आपको मुख्तलिफ लगे कि उनको लिटरेचर दूसरा मिला पढ़ने को, उनको किताबें दूसरी मिली पढ़ने को। आप अगर अपने बच्चों को कुछ अकीदा मदरसों में दाखिल नहीं करेंगे, कहीं मुरीद भी कराते हैं तो समझे हमारे पीर साहब हम फला सिलसिले से बचत हो जाएगी। और अल्लाह के ज़िक्र की आम इजाज़त हमारे बुजुर्गों ने हमने भी दी है। और जो इस्तग़फ़ार पढ़े बाद में चाहे शजरा ले ले, शजरा भी ले ले, चार उसमें से। और माहौल जो है हमारे यहाँ, जो इस वक्त पूरी दुनिया में इख्तिलाफ पैदा किया है, वो हमारी दावत इस्लामी ने किया है। उससे हरगिज़ हसद नहीं करना किसी सिलसिले में, आप बाती और चिश्ती रखना, ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं के मरीद हो आप, है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तफरीज़ तकसीम खत्म कीजिए। मगर इतनी आज़ादी दूंगा कि अपने बच्चों को आज़ाद छोड़ दीजिए। सिर्फ ये याद कीजिए, आज अल्लाह फरमाए अच्छा कर तुम औलिया अल्लाह हो, मिलने की तमन्ना करो, मुलाकात की करो, मौत की नहीं करोगे, जबकि मौत को जिधर मौत रजी तब फिर सुन्नत शहादत मौत तो एक दिन मिलेगी, और ये मौत फर्क कर देगी, बता देगी कि सच क्या था और गलत क्या था। और अगर हमारे गिरोह में आ गए, अल्लाह फिर मैं भी हूँ उसमें अमन आखिर अच्छा हो, तो बगैर पासपोर्ट वीजे के जन्नत में आप चले जाएंगे। बगैर कब्र को देखेंगे भी नहीं, फरिश्तों को देखेंगे भी नहीं। फर्ज नमाज अकीदा अच्छा मैंने बता दिया, फर्ज नमाज उसके बाद एक दफा कुर्सी पे पड़ेगा, सरकार ने फरमाया उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का पर्दा हाइल है, मौत आएगी और वो जन्नत में होगा। इतना आसान कर दिया। हुजूर ने जन्नत बहुत सस्ती दी है, वुज़ू करो, कलमा पढ़ लो, शहादत का, जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं, जिसमें से चाहो चले जाओ। तो इतना भी नहीं, वुज़ू करके सुना, इतना मुझे भी हिम्मत है। शैतान
अच्छा होगा। वुजू जो है, वुजू किस चीज के लिए करते हैं? नमाज, नमाज पढ़ना। अच्छा, लेकिन कोई दोहराई जाने वाली बातें हैं कि नमाज बगैर वुजू के नहीं है, वुजू बगैर नमाज के हो सकता है कि नहीं ना? मैं तुम्हें डायरेक्ट शब्द नहीं करना चाहता हूँ, और मैं अगर तुमसे पूछूं तो यही जवाब दे दो, क्या बताओ, वुजू नमाज के बगैर कर सकते हैं? नहीं ना? ये हमने 20 साल जलसे किए, नारे लगाए हैं, लिफाफे दिए हैं, तुम्हारे माँ बाप से हमने पैसे लिए कि तुमको समझाएं, और ये समझाया है, इतना दीन पहुंचाया तुम तक कि नमाज के बगैर वुजू नहीं हो सकती। बेटा, नमाज वुजू के बगैर नहीं है, शायद तुम ये समझ रहे हो, नमाज वुजू के बगैर नहीं है, लेकिन वुजू नमाज के बगैर कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, करना चाहिए, वुजू से रहना चाहिए, वुजू कर सकते हैं, करना चाहिए। और अच्छा, अफजल क्या है, नमाज है कि वुजू है? नमाज। लेकिन पता चला कभी कभी अफजल तक पहुंचने के लिए अदना का वसीला जरूरी होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अफजल तो नमाज ही है, लेकिन उस अफजल तक पहुंचने के लिए अदना का वसीला चाहिए होता है। फिर वुजू के लिए मैं तो दुनिया की तरफ जाता हूँ यार, तुम लोगों को रोजी कमाओ, रोजी इबादत करो, फिर रोजी कमाओ, पैसे कमाओ, खर्च करो। नमाज के लिए वुजू चाहिए, वुजू के लिए पानी चाहिए, पानी के लिए कुआं चाहिए, कुआं के लिए मेहनत चाहिए, उजरत चाहिए, मजदूर चाहिए, पैसे चाहिए। नमाज के लिए वुजू चाहिए, वुजू के लिए पानी चाहिए, पानी के लिए कुआं चाहिए, पंप चाहिए, टंकी चाहिए, टैंक चाहिए, लाइन चाहिए, पैसे चाहिए। पैसे कमाओ, कौन मना करता है? लेकिन वो कमा के मस्जिद बनाओ, खाना बनाओ, कारखाना बनाओ, लोगों को खाना खिलाओ, बड़ा माँ बाप की मदद करो बच्चों को। और फिर सूरज जुमा ने खुद ही इसी तरफ मार्ग कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बेटा तुम्हें अख्तियार है, चाहो तो ठहरो, चाहे तो जाओ, और वहीं रहो, मेरे पास आना चाहते हो, मेरा बयान बाकी है। अल्लाह, मैं बयान फर्ज कर दूं, लेकिन क्योंकि ये मुख्तसर सूरत है, बिल्कुल है, और ये बात तो आपके इल्म में है और आपके लिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अव इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ तालमून। ऐ ईमान वालों, जब जुमे के दिन नमाज की अज़ान सुनो तो दौड़ो अल्लाह के ज़िक्र। कितना एहतमाम किया, नमाज का जिक्र किया, जुमे के दिन का जिक्र किया, नमाज का जिक्र किया, अज़ान का जिक्र किया, ईमान वालों का जिक्र किया। एक आयत के हिस्से का फिर सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक आयत के हिस्से में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अव इला ज़िक्रिल्लाह। अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाइए इधर, आ जाइए, सुबह ने पेश किया, फिर फौरन अमल हो गया, भाई पैसे खर्च करो,